میں سمجھ سکتا ہوں کہ شدید گرمی ہے، آپ سب لوگ پریشان ہیں، لہٰذا آپ اس پروگرام کی آخری کڑی میں گزارش کروں گا جناب ماسٹر عاصم محمود سر آگے کی طرف شکریہ رہ چکے ہیں، یہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہماری قرارت فرما رہے ہیں اور ہر محاذ پر آپ ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس مکتب کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ تحریری محاذ ہو تقریری محاذ ہو، آپ ہر محاذ پر ایز مفتی شہر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آپ تمامی مہمانان کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ تو آخری کڑی ہے اس محفل کی، آپ ایم ایس آئی انٹر کالج جو شہر کا معروف ادارہ ہے، وہاں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے سینئر لیکچرر ہیں، تو میں آپ بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جناب ماسٹر مختار صاحب کی بات بڑی سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سماعت کریں۔ سلیم محترم المقام لائق کے صد احترام مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، سینئر جرنلسٹ عرفان صدیقی صاحب، تنویر آزاد صاحب اور ہمارے تمامی مہمان ناوید عالم صاحب اور ماسٹر اعظم صاحب، اور بالخصوص ان کی دعوت ہم نے بڑے پیار سے قبول کی، جو بڑی خدمت کرتے ہیں اس سوسائٹی کا، اپنی قوم کا، سید فرحان صاحب کے بنا ان کی اتنی خلوص اور محبت ہوتی ہے کہ ہر موقع پر ہر لمحے پر ہمارے بیچ کھڑے رہتے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے اس بچوں نونہالوں کی پرورش کے لیے ان کی تعلیم کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے، ماسٹر انس صاحب اور مفتی اظہر شمشی صاحب کا یہ مکتب ہے، اور اس مکتب کو جس طرح سے فروغ مل رہا ہے مفتی اظہر شمشی صاحب اور ماسٹر صاحب کی طرف سے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے آج کے اس مبارک دن پر، جس کو یوم آزادی انڈیپینڈنس کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ تمامی بچوں کو اور بزرگوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو اس موقع کی اور اس یوم آزادی کے لیے مبارکباد۔ عزیز طلبہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو ننھیال بچے ہیں، جو شاید ہماری بات ابھی ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، میں بتاتا چلوں کہ قربانی جو اس ملک کے مسلمانوں نے دی ہے، اور اگر سچے معنی میں پوچھا جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں ہی کی اصل میں قربانی کا نتیجہ ہے، جو 90 سال کی جدوجہد کے بعد ہمیں یہ آزادی کا دن ملا ہے۔ 1857 سے لے کے 1947 تک اگر تاریخ کا اوراق پلٹے جائیں تو 90 سال ہوتے ہیں، اور 90 سال کی جدوجہد کے بعد یہ دن ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ سن 1857 کی یہ جو عظیم بغاوت تھی، جس کو ہم حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے فتوی جہاد سے یاد کرتے ہیں، جب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہ فتوی جہاد دیا تھا، تو اس وقت یہ ہم پر لڑنا فرض ہو گیا تھا، ہم پر جہاد فرض ہو گیا تھا کہ انگریزوں سے ہمیں ہر حال میں جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ اس کو دبانے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا، اس کی تاریخ کی ایک جھلک بتاتا چلوں۔ جب کچھ حد تک دب گئی جنگ، اور سب سے پہلے تو یاد کرو اس عظیم بادشاہ کو، جس کی قیادت میں، جس کی لیڈرشپ میں، بہادر شاہ ظفر کی لیڈرشپ میں یہ جنگ جو بغاوت تھی 1857 کی جو لڑائی تھی وہ لڑی گئی تھی۔ لیکن سن 1857 کی جو لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں بہادر شاہ ظفر کی اس بغاوت کو دبانے کے لیے 19 لوگوں کا سر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان میں 2 بیٹے ان کے تھے، اور کل ملا کے اس خاندان کے 19 لوگوں کا سر کاٹ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہی کہا تھا، الحمدللہ ہم اس سے دبنے والے نہیں ہیں، ہمارے سر بھی کٹ جائیں گے پھر بھی ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر جیسی شخصیت، جن کی قیادت میں سن 1857 کی جنگ لڑی گئی،
लेकिन उन्होंने उनके खानदान वालों के 19 लोगों के सर तश्तरी में रख करके उनके सामने पेश किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अंग्रेज कितने भी मजालिम हम पर ढाते चले जाएं, लेकिन हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, हम अपने मिशन पर हर वक्त लगे रहेंगे। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की कुर्बानी पेश की है। दूसरी तरह से जब हजरत अल्लामा फजल हैदराबादी का जब फतवा आम हुआ और फिर उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद जब मुकदमा चलाया गया तो एक अंग्रेज वकील था, उसने ये कहा कि अगर मौलाना अगर तुम यहाँ जो सिग्नेचर 100 उलमा की 500 उलमा के उस पर सिग्नेचर है उस पर तो तुम्हारा भी सिग्नेचर है, अगर तुम ये कह दो कि इस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है तो तुमको हम आजाद कर देंगे। उस वक्त हजरत अल्लामा फजल खैराबादी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि हम कतई कह नहीं सकते, क्योंकि मैदान महशर में जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला होगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने वहां झूठ बोला था कि ये फतवा हमने नहीं दिया था। हम एक नहीं 1000 बार कहते हैं हमें ये फतवा फतवे जिहाद दिया है, आपको जो है काला पानी की सजा दे दी गई। तुरंत वहां जो घोड़ा जज था उसने काला पानी की सजा दे दी और अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ चारों तरफ से समंदर होता है, चिलचिलाती धूप होती है, चुटियल मैदान होता है, वहां आपको जदोखोर किया गया और ऐसे गंदे काम कराए गए यहाँ तक कि आपका वहीं पर इंतकाल हो गया। तो अल्लामा फजल हैदराबादी की कुर्बानियां अगर आप देखें तो बेपनाह। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे जरा सा बताता चलूं कि इस तमाम सारी बगावत को जब कुछ दब गई तो यहाँ का एक बहुत बड़ा सियासतदान था जो सारी रिपोर्ट इंग्लैंड भेजता था, डॉक्टर विलियम था। तो डॉक्टर विलियम ने यहाँ से रिपोर्ट भेज दी कि अगर जितनी भी जंग यहाँ पर लड़ी गई है, जो लोग भी इसमें शामिल थे उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे, कोई और कौम नहीं थी उसमें, सिर्फ मुसलमान थे। इसलिए वायसराय ने जब ये सुना तो वहां से सख्त आर्डर कर दिया कि जो भी दाढ़ी टोपी वाला लंबे कुर्ते वाला मिले उसको तुरंत का तुरंत उसको गोलियों से भून दो। तो सन 1857 के बाद सन 1861 आता है। सन 1861 में जो पहला काम किया 3 लाख पुराने पाक की कापियों को जलाया अंग्रेजों ने। 3 लाख पुराने पाक की कापियों को अंग्रेजों ने बदले में जलाया कि जब से मुसलमान ही जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे पहले इनके मकतब को खत्म करो, इनकी किताबों को खत्म करो और इनके वजूद को मिटा दो। तो जाहिर है जब ये दब जाएंगे तो हर हाल में हम हमेशा के लिए इस मुल्क को फतेह कर लेंगे और हमेशा हमारी काबिलदारी रहेगी। अंग्रेज वो जागरूक कौम है, ऐसा नहीं कि वो पहले से जागरूक थी। सबसे पहले तो कहा था कि साहब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए फिर हमको भगाना पड़ा, हमको गुलाम बना लिया। क्या हिंदुस्तानी में अंग्रेज आए? 1 दर्जन ऐसे मुल्क हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया भी आज भी गुलाम है, हम तो मुकम्मल आजाद हो गए। आपका साउथ अफ्रीका कि आज भी उनकी किंगशिप चलती है। देखिए आप बहुत सारे कंट्रीज जिसको सोवरेनिटी नहीं मिली। तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से जो है वो हमको दबाने और कुचलने के लिए जिस तरीके से इंतजाम गोरी सरकार ने किया था, मैं थोड़ी सी बच्चों अजीज तारीखें बता दूं। सन 1861 में जब 3 लाख कापियां जलाई गई और जो भी बच्चे मकतब के थे उनको हटाया गया और उसके बाद उलमा की बारी आई। सन 63 से लेकर के 67 तक 4 सालों के अंदर तकरीबन 14,000 उलमा को फांसी दी गई और 2 लाख मुसलमानों को फांसी लटकाया गया था, जिसमें 51,000 उलमा की तादाद थी। 2 लाख मुसलमानों की उसको फांसी दी गई थी, जिसमें से 51,000 उलमा थे। इस तरीके से उन्होंने कहा अब तक की बात नहीं है। फिर वो करते थे कि उलमा को पकड़ लेते थे और पकड़ करके उनको जो है वो सुअर की खाल पहना देते थे माज़अल्लाह और उसके बाद उसको जला देते थे तंदूर में रख करके। ये जो रावी नदी है, रावी नदी के सामने गोरों में भर करके और वहां उस नदी में डाल दिया जाता था, फिर गोरी सरकार के फौजी उस पर गोली चलाते थे।
तो पता चला तारीख का वो पहलू अगर आप देखेंगे तो उलमा की बेशुमार कुर्बानियां हैं, ऐसी कुर्बानियां हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं बहुत सारी कुर्बानियों के साथ में आपको बताता चलूं कि मेरे अजीज तलबा, मेरे अजीजों, जब कोई कौम अपनी तारीख को याद रहती है तो जिंदा है, जब तारीख को याद देती है तो फिर वो मुर्दार हो जाती है। इसलिए बेहतर है वो पहले याद रखो कि हमने कुर्बानी कितनी पेश की है, हमारे उलमा ने कितनी कुर्बानी पेश की है। विलियम ने तो यही रिपोर्ट भेजी थी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने, इसलिए वो टूट पड़े पूरे अंग्रेज की, सिर्फ उस दाढ़ी टोपी वाले को लिखा हुआ है कि लंबे कुर्ते वाले दाढ़ी वाले को जहां भी पावरफुल वहीं मार दो उसको, ऐसा वाइसराय ने मैसेज भेजा। और जब ये बारी बारी करके सारे उलमा को फांसी दिया जा रहा था तो एक अंग्रेज ने उनसे कहा कि मौलवियों, अगर तुम ये कह दो कि हम जंग आजादी सन 1857 की जंग में शामिल नहीं थे तो तुम हम सबको छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी आलिम दीन ने सर कटा लिया, लेकिन सर नहीं झुका, तो कतई किसी ने कहा हम सब उसमें शामिल थे। तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से हमारे उलमा ने और आवाम में कुर्बानी पेश की 1857 के बाद भी, और लड़ते लड़ते सन 1947 भी आ गया, तमाम सारी कुर्बानियां पेश हुई है, जिसका एक लंबी तस्वीर है। और जब अंग्रेजों ने बांटा तो टू नेशन थ्योरी लेकर के बांटा। लॉर्ड माउंटबेटन, लोग कहते हैं कि वो तो जिना थे, वो लेके चले गए, जिना ने ऐसा काम न किया होता, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने गोलमेज सम्मेलन में दो राष्ट्र को बांट करके ही तक जो है यहाँ से आजादी हासिल की थी। टू नेशन थ्योरी उनके कॉन्सेप्ट में था, और टू नेशन थ्योरी को लेकर के यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान में आजादी मनाई जाती है और 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान में आजादी। तो टू नेशन थ्योरी को लेकर के उन्होंने इसको बांटा। तो मेरे अजीजों, ये तालीम का गहवारा है जहाँ आप बैठे हुए हैं। मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसका नाम कालविन तालुकदार कॉलेज, कालविन तालुकदार कॉलेज, जहाँ पर मुझे हॉस्टल के बच्चों को ट्यूशन देने का मौका मिला। तो मैंने उसकी तारीख पढ़ी तो पता ये चला कि अलेक्जेंडर कालविन जो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, उसने सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए वो कॉलेज खोला था। कोई आम सब्जी फरोश का जो सब्जी फरोश के बच्चे का कई तरह से उसमें एडमिशन नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ जमींदार लोगों के ही बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता था। आज ये जो हम नौनिहाल देख रहे हैं, यानी गली कूचे में हमारे मकतब चल रहे हैं, इसी आजादी के देन है कि हम आजाद हो गए, और इस तरह से ज़हनी तौर से आजाद हो गए कि हम जिस तरह भी चाहते हैं अपने लिए, वो फिरका परस्ती और तासुबात तो अपनी जगह पर हमेशा हर दौर में रही है, लेकिन याद रखिए कि जिस तरीके से हमें पढ़ने और तालीम हासिल करने का मौका आज आजाद हिंदुस्तान में मिल रहा है, शायद इससे पहले नसीब नहीं था। पहले इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी, जिसको IAS आप कहते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तहान इंग्लैंड में हुआ करता था, कोई भी आदमी वहां जाकर के वो इम्तहान नहीं पास करता था। लेकिन यही आजादी की देन है जो आज हम हर साल 10,000 इंडियन IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। उसी आजादी का सिलसिला, इसमें भी कोई भी इम्तियाज नहीं। जो अगर इतनी अच्छी टैलेंट रखता है तो उसको क्वालिफाई करके पास कर सकता है। मैं बहुत ज्यादा बात न करके अपनी बात को यहाँ समेट रहा हूँ कि मेरे अजीजों, एक मैसेज यही है कि अभी तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हारी जहानत इतनी नहीं कि बड़ी बड़ी तारीखों का मुताला कर सको, लेकिन अगर दुनिया को फतेह करने का अगर इरादा है तो वो जरिया सिर्फ और सिर्फ तालीम है। इल्म के बगैर ऐसे रहता है आदमी जैसे कोई एक ड्रम हो खोखला कोला, अब उसके अंदर आप जाएंगे तो अंधियारा नजर आएगा, लेकिन जब एक रोशनी अपने दिलो दिमाग में जल जाएगी तो शायद पूरी दुनिया रोशन नजर आएगी और आपकी मंजिलें आसान नजर आएंगी। और आगे चलते चले तो मैं बताता चलूं, इस सोसाइटी को फेस करना बड़ा मुहाल होता है। यानी मेरी माँ कहती थी कि किसी दूसरे की जेब से 1 रुपया ले लेना बड़ा मुहाल काम है। तो सच्चाई यही है कि जब तुम बड़े होगे तो सोसाइटी तुम्हें इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी, और इल्म ही वो तलवार है जिसके बिना पर तुम इस सोसाइटी को अपने चंगुल मिले करके अपनी राहों को तलाश सकते हो। तो याद रहे, हमेशा आपको इल्म को हमेशा
ये सबसे बड़ी बात हमारे सोसाइटी के अंदर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई जो पिछले दोनों भी हमने आवाज उठाई थी, एक गोष्ठी का आयोजन किया था, सिम्पोजियम बनाया था। उसका भी मकसद यही था कि जो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 3 क्लास 5 क्लास या मकतब पढ़ करके, उनके वालिदैन जाके अपने घरेलू कारोबार में लगा देते हैं, उसके बाद उनकी तालीम का सिलसिला रुक जाता है। और आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी मुश्किलात हमारे सामने यही है कि जिनके घरों में थोड़ी माशी हालत खराब है या कमाने वाले कम है, तो वो तुरंत ये कह देते हैं कि हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम पर नौकरी तो मिली नहीं है, हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम पर तो नौकरी मिलने वाली नहीं है। यानी मुसलमानों ने जिस रोज से नौकरी, इल्म को नौकरी से जोड़ दिया, बस वही खराबी आ गई। 2-4 लोग हमें नजर आते हैं कि वो नौकरी में है, लेकिन सच्चाई कि जब तालीम पुख्ता रहेगी, आला तालीम रहेगी। अब एक वकील खड़ा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, लेकिन वो पता चला आप नहीं है। एक बड़ा सा दरोगा खड़ा हो जाता, वो आप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस मेयार की तालीम ही नहीं हासिल की। और मेरा ये दावा है कि जो उस मेयार की तालीम हासिल करता है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जो उसका मिशन होता है अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है। तो मेरे अजीजों, तालीम के मैदान में आप सबको आगे आना है, और कोई रुकावट, कोई मुश्किलात कहीं से होती है तो अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी रखी, हयात रखा, तो जब भी किसी तरह से किसी बच्चे को मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि अभी भी हमारे बहुत सारे नौजवान हमारे कॉलेज में, मतलब जो नौनिहाल हैं, वो गए हैं, और सबका दाखिला मैंने खुद बैठ करके तकरीबन इस मई से लेकर के जून जुलाई उसमें किया है, ताकि ये हमारे मकतब के बच्चे कहीं से ड्रॉप आउट ना हो जाए। बगैर किसी उसके दर्जा 6 से लेकर के 12 तक हम लगातार तकरीबन 1100 बच्चों का अब तक दाखिला कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर किसी तरह की किसी को कोई परेशानी होती, बच्चा अगर वो नहीं पढ़ सकता या पढ़ा सकता, तो इंशाअल्लाह आप अगर मिलेंगे, हमसे राब्ता करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो जरूर हम आपकी हर तरह से मदद करके हम आपको ऊपर ले जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।